Good afternoon, all of you. Welcome back to the next lecture of chemistry, solution chapter. So, in the previous lecture, we have finished a very important law. जो मैंने बोला था कि हेनरी ने काम करा तो राउल्स को पीछे कैसे रह जाए, उसने बोला कि मुझे भी करना है. तो वी हैव डन, इफ यू रिमेंबर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड. किसने दिया था ये? राउल्स ने. और हेनरीज ने क्या दिया था? सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है. तो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, again the same thing. Today also what we have to do, we have to discuss in the beginning numericals, Raoult's law ka, solution of liquid in liquid ka. Then we have the B part, as we have finished the A part in the previous lecture, solution of a liquid in a liquid. After finishing the numerical, we will take solution of a solid in a liquid. So this we have to finish today. Both the topics like numericals as well as the other topic are very important. So don't forget to like the video, subscribe the channel and share it with many, as we have to start with this. So today we will start with the numerical of Raoult's law. The numerical is written on the board. I will read it first, then you have to write it. So first I will read, listen carefully. Vapor pressure of chloroform, I think you know the formula of chloroform is CHCl3, and dichloromethane, the formula is CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg, 200 mmHg and 415 mmHg. Two unknown are there in the numerical. The first one, calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin. This is the first part. Second part, they are asking mole fraction of each component in vapor phase. Before we solve, we will revise the formulas of previous class, but before that, you please write down the numerical immediately. So all of you have to start writing the numerical. Hurry up. Vapor pressure of chloroform, vapor pressure of chloroform, CHCl3 and dichloromethane, CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm and 415 mmHg, that is the mercury, respectively. Again, I'll repeat the line fast. Can you write it very fast? Vapor pressure of chloroform, CHCl3 and dichloromethane, that is CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 yani 415 mmHg respectively. Now write 1 or A, whatever you want. Calculate the vapor pressure. Calculate the vapor pressure of the solution. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin. So the first aim is to detect the vapor pressure of the solution which is prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of CH2Cl2. Second part, write mole fraction of each component in vapor phase. Mole fraction of each component in vapor phase. So this is the aim of this numerical. Before we start solving the numerical, I think we should know that what are the formulas which we have to use in this numerical. So remember, in the previous class, if you remember, I have given to you one formula, that is the total pressure. Because if you can't solve any numerical if the formula is not like in your memory.
So P total equal to P naught A plus bracket P naught B. I told you that B component is more vaporized or have more vapor pressure, minus P naught A into XB. This is one formula which we have taken. The other one is very simple. PA equal to P naught A XA and PB equal to P naught B XB. That was also we have taken it in the previous class. P naught A into XA, have you remember? And PB equal to P naught B into XB. This one we have taken. And one more formula at the end of the lecture, the previous lecture, where we have given to the mole fraction of the component where? In vapor phase. Have you remember that formula? That was PA equal to P total into YA. Have you remember? Partial pressure of A, this one. Partial pressure of A equal to total pressure into mole fraction of A in vapor phase. In the same way, partial pressure of B equal to P total into mole fraction of B in vapor phase. So these are the formulas which we have done it in the previous lecture, and because we are solving the numerical of the same thing which we have taught in the previous lecture, so we have to revise the formulas again. So immediately you have, please have a look on these formulas, then we start solving our numerical. Now remember that what we need, like what we want, they are asking us in the first one A, like for answer, they are asking us calculate the vapor pressure of the solution, means they are asking total pressure. Okay, so if you look here, I think this is the first formula which we have revised it, 2, 3, 4 and 5. So for the total pressure, I think we require the first formula, that is P total equal to this one. So we require the first formula here. Now total pressure they are asking. How you know that where is P naught A, P naught B? Now listen to me carefully, we have to read the line again. Vapor pressure of chloroform, they have given only for chloroform, mean this is the pure chloroform. Okay, vapor pressure of chloroform is given 200 mm. This is pure chloroform vapor pressure. Then for CH2Cl2 they have given 415 mm Hg. Again only it is for CH2Cl2. So this is your P naught for dichloromethane, that is the pure one. I am observing that the children which are having phobia and numerical, actually you know the meaning of phobia, the reason of phobia, they don't know that this number is for which data. So if you will be able to understand कि भाई ये जो दिया है ये number ये कौन सा unknown है, immediately you can solve the numerical. Okay बेटा. Now the second thing, we know that the B जो है हमारा वो बड़ा वाला होएगा, है ना? तो CH2Cl2 का 415 है. So according to our calculations, our P naught B is CH2Cl2 and our chloroform is A. So we can start like this to keep it simple. Suppose ऐसे करके अपन लिख सकते हैं. Suppose A equal to chloroform, okay, and B equal to CH2Cl2. So it's okay, no problem. You are having P naught A, मतलब अपन को देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या है और क्या निकालना है. हमें P टोटल निकालना है. P naught A हमारे पास है, P naught B है, but XB हमारे पास नहीं है. XB is not difficult at all, but हमें निकालना पड़ेगा. What is B? B is the mole fraction of CH2Cl2. This is CH2Cl2. So if you want to determine the mole fraction, you should have the number of moles of A and B, and then you write the formula, you will be getting it. So let us do it. They have given to us this 40 gram of CH2Cl2 you have, and you will be you are having 25.5 gram of chloroform also. So let us write the first thing, molecular mass, correct? Because अगर आपको number of moles निकालना है तो आपको दोनों के molecular mass निकालना पड़ेंगे पहले. तो ये वाले जो numericals है बेटा, ये 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, आते रहते हैं, बट ये मैं तुमसे जरूर कहूंगी कि इनके जो कैलकुलेशंस हैं आर लेंदी. तो नो प्रॉब्लम, इफ इट इज लेंदी वी हैव 3 आवर्स पेपर, इट इज नॉट ओनली 1 hour that we will not be able to do it. So molecular mass of CH_Cl3, for carbon it is 12, for hydrogen it is 1, for Cl it is 35.5, and don't have any doubt because the atomic masses will be given to you. So the molecular mass for chloroform you will be getting 119.5. 119.5
you can write, or gram per mole. If you want to write gram, then you have to write gram per mole. Don't write only gram, it is 100% wrong. You have to write gram per mole or you have to write U, both are correct. Then let us take the second one, molecular mass of CH2Cl2. So you have carbon again 12, 2 hydrogen mean plus 2, 1 Cl is 35.5, so 2 plus into 35.5, when you multiply and add you will be getting 85U. So the first step you will be determining the molecular masses of both the solvent which are given to you. After this we have to detect the number of moles. So the next step what we are doing, we are detecting the number of moles of chloroform. We know that for chloroform they have given to us 25.5 gram divided by 119.5. These are the number of moles of chloroform. I will write the answer afterwards. Then number of moles of CH2Cl2, what we are taking 40 gram we have of CH2Cl2, we are dividing it by 85. Okay, see, it is not difficult. So first we have taken the molecular mass of chloroform 119.5, then for CH2Cl2 85. Now I am taking the number of moles of chloroform, that is 25.5, the weight divided by molecular mass. So for in case of this you will be getting 0.213. 0.213 here we are getting, and here we are getting 0.47. 0.47 we are getting it here. So we have to detect the molecular mass. Then after the एक step एक के बाद एक आता जाएगा. Then we have taken the number of moles. Now if I want to detect the mole fraction of B, so I know that B is CH2Cl2. The mole fraction of CH2Cl2 equal to number of moles of CH2Cl2, that is 0.47, divided by number of moles of CH2Cl2 plus number of moles of chloroform. So you will be getting XB also. Then you can directly apply on the formula and you will be getting the answer. So you will be getting 0.688. 0.688 you are getting in this mole fraction of B, that is for CH2Cl2. I hope it is clear till here. So each and every numerical is like having a past chapter formulas, है ना. Past chapter mean past topics. अब जैसे एक से एक जुड़ा हुआ है सब. आप कहोगे मैडम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग का मोल फ्रैक्शन लगा रही हो, हाँ लगा रहे हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन मोल कांस्टेंट का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में लगाते हैं, अपन इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स में लगाएंगे, तो सब एक से एक जुड़ा रहता है. ठीक है बेटा. सो दिस इज these are the number of moles of chloroform and these are the number of moles of CH2Cl2 and this is the mole fraction of CH2Cl2. Is it clear to you? Now after this you should remember that in this the first part where they are asking, what they are asking, total pressure. They are asking total pressure. So we have to apply this formula now, P total, and then we will write. So let us write the formula. P total equal to P naught A plus bracket P naught B minus P naught A into XB. Don't forget to write the formula because formula carry marks. May you know the formula and you do the application directly, substitution, then the mark of formula will not be given to you. So please remember this. So now P total equal to P naught A. We know that A अपन ने लिया था. What is A? Chloroform. And what is B? CH2Cl2 ना. तो A का जो क्लोरोफॉर्म है उसका हमें दिया है वेपर प्रेशर 200 mmHg. तो ये हमारा 200 है प्लस P naught B is given to us 415. ये लिखा है 415 minus 200 into XB, that is 0.688. So this is your total pressure. So this is your total pressure and the answer which you are getting here 347.9. Don't forget to write the unit, as the unit is mmHg because they have given all the pressures in mmHg. So the unit is mmHg and this is your P total. And the same numerical with the same exact same idea, only the difference in the numbers, they have given it in between 3-4 years in NEET के पेपर में आए हैं. IIT JEE में इस तरह का लेवल आ रहा है. मतलब मैं तुम्हें ईमानदारी से बोल रही हूँ, जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ जिस लेवल का
और जिस तरह से अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, आपका देखना कि 95% ना पूरा कॉम्पिटिटिव भी आपका इसमें पूरा चल रहा है। जो एक्स्ट्रा है वो अपन अलग से करवा देंगे, थोड़ा सा बचता है, बट यू शुड हैव द हैबिट टू सॉल्व ईच न्यूमेरिकल लाइक एज आई एम सॉल्विंग इट हियर। ओके, नाउ आफ्टर गेटिंग द पी टोटल मीन, हमने ए पार्ट कर लिया क्वेश्चन का, ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब हम जो बी पार्ट है वो हमसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस। वेपर फेस में हमसे वो मोल फ्रैक्शन मांग रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है बिकॉज वी हैव द फॉर्मूलाज। देखो आपके पास फॉर्मूला नंबर 4 क्या कह रहा है, पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। पी टोटल आई एम गेटिंग इट 347.9, बट अगेन आई हैव द प्रॉब्लम कि पी ए मेरे पास नहीं है। ये जो हमें दिया है ये तो प्योर का है, पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया है, पी ए मुझे निकालना है, लेकिन राउल्स ने हमें बोला है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए पी नॉट बी मेरे पास है, एक्स बी मैंने निकाल लिया है, एक्स ए मैं बहुत आराम से निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। आई नो इट इज लेंथी कैलकुलेशन बट इट इज वेरी इजी, देयर इज नो एनीथिंग लाइक विच इज वेरी डिफिकल्ट इन कॉन्सेप्चुअल वन। सो ये अभी मैं तुम्हें टाइम दे दूंगी, अगर नहीं कुछ छूटा है तो लिख देना। अभी अपन यहां आ रहे हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सेकेंड पार्ट बेटा वी हैव टू डिटेक्ट पी ए। सो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। लेट अस we have taken mole fraction as this 0.688. So we know the formula that XA plus XB equal to 1. So you want to detect SA equal to 1 minus XB. 1 minus what's the number? 0.688. 1 minus 0.688. So you will be getting 0.312. Okay. So this is the mole fraction of A also you are having. सो पी ए जो कि क्लोरोफॉर्म का अपन निकालना है, वी नो पी नॉट ए हमारे पास कितना है 200 इंटू 0.312। तो ये हमारे पास जो नंबर आएगा वो हम ले रहे हैं अभी 200 इंटू 0.312 आ रहा है 62.4 mmHg। 62.4 mmHg। दिस इज द answer of PA, this is the partial vapor pressure of chloroform. In the same way I will take PB. PB का बेटा P naught B is 415 into what's the mole fraction B का 0.688। 0.688। तो इसका आंसर अपने पास आ रहा है सेकेंड वाले का 285.5 285.5 mmHg। तो ये आपका कौन सा आ रहा है, सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये आपके PA और PB हो गया, ये दोनों आपके हो गए। अब आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो अब अपन नेक्स्ट लास्ट स्टेप कर रहे हैं। व्हाट इज आवर लास्ट स्टेप? आई वांट YA। सो YA equal to PA divided by P total, correct? What is PA? 62.4 and what is P total निकाला है अभी 347.9। ऐसे ही YB equal to PB कितना हमने निकाला है 285.5 divided by total pressure, this is 347.9। अब अपन दोनों के आंसर देख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 62.4 अपॉन दिस यू विल बी गेटिंग 0.18 और बी वाले का आंसर बचाना है तो 1 में से माइनस कर दोगे तो बी वाला भी आ जाएगा। ओके, देयर इज नो एनी यूनिट फॉर मोल फ्रैक्शन। आई नो द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट बट आई ऑल्सो नो दैट द कैलकुलेशन आर डिफिकल्ट। आप पूछ सकते हो कि मैडम आप भी अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगी आपको भी टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आई एम ऑल्सो लाइक यू एग्जैक्टली। While solving the calculation, I also require time. But क्योंकि मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी भी हो जाएगी फाइनल तक 100%, जैसी मेरी वैसी तुम्हारी हो जाएगी। तो जो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हैं जहां जहां सब कुछ हमसे बन जाएगा, हम तेज तेज लिख लेंगे। जहां न्यूमेरिकल वाला टाइम है वहां हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे, दे देंगे उसको, और हमारा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा टू गेट 100 आउट ऑफ 100। इट इज नॉट सो इजी जॉब, आई नो, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में लाते हैं ना बच्चे 100 आउट ऑफ 100, वाई नॉट यू?
So please remember, and why not even not 100, above 95, you can do it. So please, I am giving you 2 minutes to write each and everything written on the board. Please, first you finish this, फिर यहाँ से आना, और ये तो मैंने रिवीजन करवा दी, इसकी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो रिवीजन था. Hurry up children. A very good numerical, and it is important. Why? Because मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आ रहे हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम तुम कर रहे हो, ये एग्जाम्स में आ रहे हैं. प्लीज डू इट. मैं थोड़ा थोड़ा रब कर रही हूँ ऊपर से, जहां से आपका हो गया होगा. क्वेश्चन तो सभी ने लिख लिया होगा ऑफ कोर्स, तो वो क्वेश्चन तो बहुत पहले से लिखा हुआ है यहाँ, बाकी आंसर आप लिख रहे होंगे. एंड बी वेरी सिंसियर चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन, this precious time will not come in your life any time that you are not having anything, you are sitting at home. Please don't waste your time. Please don't waste your time. Okay? Because you have to revise, you can do many things, and you can like study each and every subject, you can finish it very carefully. You should be like solving the numerical, having a lot of टाइम. यू कैन सॉल्व मेनी न्यूमेरिकल. मैं तुम्हें 2 करवा रही हूँ, 3 करवा रही हूँ, 10 करवा रही हूँ, 20 करवा रही हूँ, तुम और कर सकते हो. अभी तो मैं तुम्हें और कुछ बताऊंगी, आगे थोड़ा बताती जाऊंगी. हम अभी और क्वेश्चन डालेंगे, हम अभी बहुत कुछ करेंगे आप लोगों के लिए. स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्योंकि अपन खाना इकट्ठा रखा तो पूरा नहीं खा सकते, थोड़ा करके ही खाते हैं. ऐसे ही अपन यहाँ कर रहे हैं. इसीलिए मैंने, जैसे आपने देखा होगा लास्ट वेडनेसडे से मैंने, क्योंकि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है आई नो, तो मैंने जो मेरे टैलेंटेड बोथ द टीचर्स विच आर हाईली टैलेंटेड जो मेरी क्लासेस में हैं, उन दोनों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप दोनों 2 चैप्टर शुरू कर दोगे. तो इलेक्ट्रोस्टैट एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है. जब तक लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल खुलेगा, तो आपके पास काफी कुछ हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्कूलों में ऑप्टिक्स से शुरू होता है. तो जो बच्चा के स्कूल में ऑप्टिक्स से शुरू हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैट खाली पढ़ रहा है तो वो परेशान हो जाएगा. तो इसलिए मैंने ये काम करा है. आई वॉन्ट द पॉजिटिव अप्रोच ऑफ माई चिल्ड्रन ऑल्सो फॉर दिस. ओके, नाउ after this we have, now I think if you have finished it, अब हम एक, आप हेडिंग डालो जब तक मैं मिटा रही हूँ. आपने याद करो कैपिटल ए लिखा था बेटा, जहां पर आपने लिखा था सोल्यूबिलिटी, सॉरी मैं सोल्यूबिलिटी के पीछे पड़ी हुई हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, है ना. ये मैंने कहा था कि बेटा इसको तुम वो कर देना, ए लगा देना. अब नाउ यू हैव टू राइट कैपिटल बी. ऑल ऑफ यू राइट टुगेदर कैपिटल बी, ऑल ऑफ यू फास्ट. कैपिटल बी, इन दैट यू हैव टू राइट vapor pressure of solution, vapor pressure of solution of solid in a liquid, vapor pressure of solution of a solid in a liquid. Okay, so this will be the next topic, the theory topic, vapor pressure of solutions of solid in liquid. Okay, so this will be the next topic. All of you keep your pen. ये नहीं सोचना कि अमीना मैडम को दिख तो है नहीं रहे और ना हम कुछ जवाब दे पा रहे हैं उन्हें. बेटा सब दिख रहा है, हमें हर चीज दिख भी रही है, और हमें पता है कौन क्या कर रहा है, कौन लेट आता है, कौन 5 मिनट बाद आता है, कौन 10 मिनट बाद आता है, कौन 15 मिनट बाद आता है, कौन आता ही नहीं है, आराम से बैठा रहता है कि रात को देख लेंगे, सुबह देख लेंगे. कुछ ऐसे भी स्पेशल केसेस होंगे जो देख ही नहीं रहे होंगे, एंड दे आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड. कर लो तुम्हें जो करना है, नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, मेरा तो इतना सा भी नुकसान नहीं. मैं तो ऑनेस्टली अपना काम कर रही हूँ. इफ यू आर नॉट डूइंग इट, डेली आई एम लुकिंग टू दिस लिस्ट एंड आई नो कि कौन कितने बजे आ रहा है. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. ऑल शुड बी प्रेजेंट, washing it the same time and writing present also. Now the second topic is vapor pressure of solution of solid and liquid. All of you keep your pen and listen to me carefully. एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुना रही हूँ, वो स्टोरी सुनने के बाद ये वाला टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे. ठीक है, नाउ लिसन. आजकल आप सबको पता है कि भाई ऐसा टाइम चल रहा है, घर में एक अकेला इंसान काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यकीनन उस पर सब पे डांटे पड़ रही हैं अगर एक अकेला कर रहा है तो. जैसे अगर आपकी मदर कर रही हैं अकेले तो ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि बहुत सारे काम हैं तो सभी लोग को मिलके करना है. सपोज आपकी मदर ने आपसे कहा
स्टूडेंट ए की मदर ने कहा, जो कि बहुत बैठे में नाम जानबूझ के ही ले रही, वरना वो कहेगा दूसरा कि नहीं मैडम उसका नाम क्यों लिया, मेरा क्यों नहीं लिया। तो एक से उसकी मदर ने कहा कि जाओ बेटा तुम जाके ज़रा मिल्क को बॉयल तो कर लो, क्योंकि मेरे पास दूसरे काम है, मैं सब्जी काट रही हूँ, जाके तुम मिल्क को बॉयल करो। बढ़िया मिल्क बॉयल हो रहा है, बढ़िया। आपके पास ये टिक टिक है ही, जो कि क्लास के टाइम तो खुशी नहीं होती उसको चलाने में, लेकिन मैसेजेस देने में, बातें करने में तो आपके पास है ही। आपके एकदम से टुक हुआ, यानी व्हाट्सएप के कोई मैसेज आया, आप बढ़िया मैसेज पढ़ने लगे, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं मैसेज को और आप रिप्लाई कर रहे हैं। इतने में ऐसा हुआ कि आपकी नज़र पड़ी उस वेसल पे जिसमें मिल्क रखा था और वो बिल्कुल ऊपर तक आ गया, बिल्कुल यहाँ तक आ गया है, और अब आपकी जान निकल रही है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी वाली डांट पड़ने वाली है, ये पिटाई भी होने वाली है कि तुम्हें एक काम दिया था तुमने ये करा। तो इमीडिएटली, क्योंकि आप साइंस के टीचर स्टूडेंट हो, अमीना मैडम के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो उनसे, तो आपने कहा कि नहीं मैं डांट तो खाने वाला हूँ ही नहीं। आपने उठाया बॉल जिसमें शुगर रखी है आपके मतलब घर में, आपने सोचा कि आज मम्मी से कहूँगा कस्टर्ड बना दो। आपने उठाया शुगर और फटाफट उस बॉल में डाल दिया जहाँ पर मिल्क बाहर आ रहा था। जैसे आपने ये स्मार्ट वर्क करा, एकदम से मिल्क जो यहाँ पर था गिर रहा था, वो एकदम से नीचे हो गया, गिरने के बदले वो नीचे हो गया। दिस इज द टॉपिक विच वी हैव टू टेक टुडे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पता है ये पढ़ना है हमें आज। दूध, चाय बनने के बदले दूध बन गया कस्टर्ड, शक्कर डाल देंगे तो कौन पिएगा उसको, तो फिर लाओ कस्टर्ड भी डाल दें, कस्टर्ड खा लेते हैं। बनाना तो मिल रहे हैं तो बनाना भी डाल देते हैं, ग्रेप्स का भी आजकल सीजन है तो वो भी डाल देते हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस? दिस इज द टॉपिक वेयर द सॉल्यूशन इज लिक्विड, दैट इज मिल्क, विच इज वेरी मच वोलाटाइल और एवापोरेट होता है, एंड द सोल्यूट इज सॉलिड विच इज नॉन वोलाटाइल। शक्कर वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है। शक्कर को जैसे ही डालेंगे वेपर प्रेशर घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन क्यों होएगा? दिस इज द रीजन, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू थिंक व्हाई। सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं पूरा लिखवाऊंगी, कुछ नहीं लिख रहा, अपन सुन रहे हैं सिर्फ। ये मिल्क का सरफेस है, सरफेस पे सिर्फ मिल्क के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं, एटम्स हैं। ये वोलेटाइल है तो इसलिए वो एवापोरेट हो रहे हैं। जैसे ही आपने शुगर डाला, आपको ऐसा लग रहा है कि शुगर पूरी नीचे गई, ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी शुगर नीचे नहीं गई है, पूरा उबल रहा है, वो बॉयल हो रहा है। तो कुछ शुगर सॉल्वेंट के पार्टिकल को हटा के ना, उसी जैसे ही डाला सॉल्वेंट के पार्टिकल को हटाया उसने और उनके जगह पे आ गई। और क्योंकि शुगर नॉन वोलेटाइल है तो स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी ना, बिकॉज वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है वो सरफेस पे कम हो गया और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सरफेस पे उसकी जगह पे आ गया, तो स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। जैसी ही स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, सॉल्वेंट पार्टिकल हट जाएंगे वहां से, तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा कि अब आपने बढ़िया शक्कर डाल दी, अब ये चले गए, ला शक्कर डाल दी अब तो और फिर व्हाट्सएप पे टिक 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 करे जाएं, ऐसा नहीं होएगा। क्योंकि वो जब शक्कर पूरी डिजोल्व होकर नीचे से जाएगी, देन अगेन सॉल्वेंट पार्टिकल विल बी ऑन द सरफेस एंड अगेन दे कैन बी लाइक एवापोरेटेड फास्ट और वोलेटाइल हो जाएंगे वो। तो उस टाइम का बता रही थी मैं ये। आई होप इट इज क्लियर। मैं तो नहीं भूल सकती अगर कोई मुझे ऐसे समझाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो सुन रहा है मेरा, वो भी कभी नहीं भूलेगा। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड? राइट इंपॉर्टेंट, हरी अप ऑल ऑफ यू, राइट इंपॉर्टेंट। लिख लिया इंपॉर्टेंट? अब ध्यान से सुनेंगे या कि लिख लें, मैं डिक्टेट ही करवा रही हूं। When a non-volatile solute, चलो लिखते भी जाती हूं मैं। When a non-volatile solute, when a non-volatile solute is added to volatile solvent, is added to volatile solvent. When a non-volatile solute is added to volatile solvent, then Vp mean vapor pressure of solution decreases. Then vapor pressure of solution decreases. Please write this line fast and put a full stop after finishing the line. Okay, done?
Now write from side heading reason. Write reason, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? What is the reason behind it? Write reason. Right? As the solute particles enter the vessel, as the solute particles enter the vessel, they occupy some sites, right? Site, S-I-T-E-S, the scientific word. Some places भी मैं कह सकती थी, लेकिन वो sites ज़्यादा अच्छा लग रहा है. They occupy some sites of solvent particles. Solvent particles की कुछ जगहों पे वो आ जाएंगे, ये मतलब है हिंदी में. As the solute particles enter the vessel, they occupy some site of solvent particles. Means both solute and solvent particles, means both solute and solvent particles are present on the surface. Both solute and solvent particles are present on the surface, comma. So अब जो लाइन करोगे ना, पूरी अंडरलाइन होना चाहिए, वो पूरी की पूरी. So escaping tendency of solvent particles decreases. Escaping tendency of solvent particles decreases. Hence the vapor pressure decreases. Hence the vapor pressure decreases. ये पूरा क्वेश्चन आता 2 नंबर का, अभी 2-1 साल पहले. So you should write important also. So the escaping tendency of solvent particles decreases. Done? Okay. Now one very important thing here, I will take the red pen. So we should write about the important thing which we have to extract from here, that is what. सुनो ध्यान से, अभी लिखेंगे नहीं. मान के चलें कि दूध बिल्कुल बॉयल होकर गिरने वाला है और आप तो उसी में लगे हुए हैं, ये कर रहा. अब प्रॉब्लम क्या है कि एकदम सामने दिखाने की शक्कर वक्कर नहीं रखी, वहां शुगर इज नॉट देयर, वहां पर तो सामने के सॉल्ट रखा है, नमक. ठीक है. अब अगर जैसे शुगर हमने डाला था 1 बाउल, एक दफा ये अपन मतलब 2-3 दफा कर चुके हैं ये हरकत. तो एक दफा तो हमें शुगर दिख गई थी, तो हमने जो कप रखा था ना, जैसे मेरे पास इतना बड़ा कप था, उसमें मैंने शुगर भर के डाल दी थी. सेकेंड टाइम कप की जगह तो वहीं रखी थी कप, लेकिन शुगर इत्तेफाक से नहीं थी और दूध गिर रहा था. तो मेरा दिमाग नहीं चला, मैंने देखा कि मतलब डब्बा रखा है, उसमें नमक है, NaCl. मैंने ये उठाया नमक और उसको भरा अपना कप को, एंड अगेन आई हैव एडेड इट इन द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क. क्या होएगा? सेम वही होएगा, दूध नीचे चला जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन पिटाई अच्छी वाली होएगी क्योंकि दूध के अंदर क्या डल गया है? सफल नमक. यू हैव टू थ्रो इट बिकॉज यू हैव एडेड 1 कप ऑफ सॉल्ट. क्या कंक्लूजन निकला इससे? क्या कंक्लूजन निकला? अमाउंट इतना ही था सॉल्ट का, शुगर का भी अमाउंट उतना ही था. मिल्क जितना डिक्रीज होना था, वेपर प्रेशर जितना नीचे आ रहा था, दोनों में सेम आया. मतलब क्या हुआ कि व्हेन द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंपॉर्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर. कुछ भी हो, यूरिया है, नमक है, शक्कर है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, इससे हमें मतलब नहीं है. अमाउंट अगर उसका सेम है तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी सेम होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, प्लीज स्टार्ट राइटिंग. डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, decrease in vapor pressure of solution depends
अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, प्लीज अंडरलाइन इट, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ये आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में, नीट में और IIT JEE में और बोर्ड में भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। ओके, राइट फास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। फॉर एग्जाम्पल लिखो, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर by adding, decrease in vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose or 1 mole of urea is same। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल भी एक डाल ली और इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आपको मैंने एक डेफिनेशन दी थी राउल्ट्स की, अगर आपको याद हो, द पार्शियल वेपर प्रेशर, लिख लो पहले, ये लिख लो, चलो ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने तुम्हें कौन सी डेफिनेशन दी थी। या तुम अपनी कॉपी में देखो ना, मैं क्यों बता रही हूँ, तुम्हारे पास भी तो कॉपी में लिखा है, फिर मैं दोहरा दूंगी। तुमने एक डेफिनेशन डाली है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और यहां पर जो बुक में एक और डेफिनेशन दी है वो भी यही है, उसमें उसने ये कहा है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट। तो वो लिखवा नहीं रही मैं, क्योंकि वो वाली और ये वाली एक ही है। ठीक है, तो ये आपका वो हो गया, राउल्ट्स लॉ का सेकेंड केस हो गया जब आपने सॉलिड को लिक्विड में डाला। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड ऑल द 3 केसेस माय डियर चिल्ड्रन। फर्स्ट वी हैव टेकन द गैस इन अ लिक्विड दैट इज गिवन बाय हेनरी। फिर राउल्ट्स को बहुत गुस्सा आया कि हेनरी ने ऐसा करा, तो उसने दो दे दिए, उसने लिक्विड इन लिक्विड भी दे दिया और सॉलिड इन लिक्विड भी दे दिया। आई होप इट इज क्लियर माय डियर। सो दिस इज द टॉपिक विच वी हैव फिनिश्ड, द थ्योरेटिकल टॉपिक वी हैव फिनिश्ड। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। मैं देख लेती हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक ग्राफ दी हुई है उन्होंने और एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पर राउल्ट्स का, वो तो तुम्हें आता है बट वो उन्होंने दिया है। मतलब उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर बिकॉज ओनली वन इन दिस केस यू हैव ओनली वन वोलेटाइल कंपोनेंट, सो दे आर टेलिंग दैट पार्शियल प्रेशर रहेगा यहाँ, अगर एक ही वोलेटाइल कंपोनेंट है, पार्शियल प्रेशर, और दिस इज द एक्सिस फॉर मोल फ्रैक्शन, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कमिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो partial pressure on the y-axis and mole fraction on the x-axis, and it will be a straight line. So you can draw it. This is for the second case जो अभी पढ़ाया ना मैंने, B वाला इसका ग्राफ ही है। हरी up. Okay, my dear. So this is about the graph and the formula is same, you know. What is the formula? वही जो अपन जब से करे जा रहे हैं, PA इक्वल टू P नॉट एक्स से, एक ही वोलेटाइल कंपोनेंट है उसी का लगा दो, बस हो गया। या PB ले लो जो तुम्हें ले रहा है, PA इक्वल टू P नॉट एक्स से हो गया। So this is all about the Raoult's law in both the cases. Okay. Now this topic is over. We have the next topic. You have to write down in your copy again. A very 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 कितने दफा लगा दिया, very 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 important. Like the video fast. जब इतना वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो वीडियो को लाइक तो बनता है। हरी अप। नाउ क्या लिखना है, आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट ईयर पढ़ा है हमने आइडियल गैस, और ये भी पढ़ा है कि आइडियल गैस कोई सी नहीं होती। क्या आप आइडियल हैं? नहीं। क्या मैं आइडियल हूं? नहीं। क्या इस दुनिया में कोई इंसान आइडियल है? बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल 100% आइडियल हो। ऐसे ही आइडियल गैस पढ़ी थी लास्ट ईयर, जो कि आइडियल गैस नहीं होती, बट आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये इतना लंबा जो अपन ने लेक्चर दिया, क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए कि सब नहीं होते होंगे, बट आइडियल सॉल्यूशन तो होता है।
सो राइट नाउ द नेक्स्ट हेडिंग जो मैंने डलवाई है मैं भी लिख लूं आपके साथ, दैट हेडिंग इज आइडियल सॉल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन. वेरी 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 100% इंपॉर्टेंट. देखो राउल्स को तो इतना गुस्सा आ रहा था हेनरी पे कि उसने दो बना दिए, लेकिन आप देखो कि राउल्स को ऊपर वाले ने कितना नाम दिया कि आइडियल सॉल्यूशन को ही कह दिया कि वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यानी जैसे अपन ने कहा था ना आइडियल गैस कौन सी होती है, जो गैस लॉज को ओबे करती है, बॉयल, चार्ल्स, गैल्यूजस, एवोगाड्रो. ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो किसको ओबे करता है, राउल्स लॉ को. ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन, इन्वर्टेड कॉमा खुल जाना चाहिए इमीडिएटली. ऑल ऑफ यू टुगेदर. आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन, हरी अप, इज दैट सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, विच ओबे राउल्स लॉ over the entire range of concentration, which obey Raoult's law, which obey Raoult's law over the entire range, over the entire range of concentration. Okay, my dear? So this is very important to remember the like definition of Raoult's, of ideal solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration. What are the conditions? क्या मतलब हमें कैसे पता चला कि भाई आइडियल है? तो अब आप साइड हेडिंग डालेंगे conditions for ideal solution. Conditions for ideal solution. Conditions for ideal solution. 1. राउल्स लॉ क्या होता है, PA इक्वल टू पी नॉट एक्स से PB इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, तो वो तो सबसे पहले लगाना है. तो फर्स्ट कंडीशन, ओबे राउल्स लॉ, दैट इज PA इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड PB equal to P naught B into XB. So this will be the first condition for any solution to be ideal. That it follow or it obey Raoult's law, that is PA equal to P naught X. PA is partial pressure of A. P naught is the partial pure A, partial pressure of pure A, and X is the mole fraction of A. The same is for B. Second very very important condition, delta V mix. Mix mean mixing equal to 0. delta V mix mixing equal to 0. क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे मेरे पास मान के चलिए दो कंपोनेंट है A और B, ठीक है. A का वॉल्यूम मैंने 20 ml लिया है और B का वॉल्यूम मैंने 20 ml लिया है. जब मैंने 20 और 20 दोनों को मिलाया तो मेरा वॉल्यूम 40 ml होना चाहिए, ना के 39.9, ना के 40.1. आपको कैसे होगा 20 और 20 40 तो होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. बहुत कुछ होता है, वो आगे चल के पता चलेगा नेक्स्ट क्लास में. अभी बस ये मालूम होना चाहिए कि डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब जब हमने मिक्स करा उन कंपोनेंट्स को तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ, वॉल्यूम रिमेन सेम. सो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 मीन्स no change in volume on mixing the components, okay. So no change in volume when we mix the components, no change in volume is observed. Next, third, delta H mixing equal to 0. इन थर्मोडायनामिक क्रैश में चल रहा है, होगा है अभी जस्ट, उसमें पढ़ा है चेंज इन इंथैल्पी, वरना लास्ट ईयर भी पढ़ा है. इंथैल्पी इज अ काइंड ऑफ हीट, एक तरह का हीट होता है ये. जब हम आइडियल पेयर को मिलाएंगे
ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ना तो कंटेनर गर्म होगा, ना हीट इवॉल्व होगी, ना कंटेनर ठंडा होगा, एंडोथर्मिक भी नहीं होगा, ना हीट एब्जॉर्ब होगी. Heat remains constant. Understood? So please remember, delta H mixing equal to 0 mean no change in heat. Neither exothermic nor endothermic. ना वो एक्सोथर्मिक है ना वो एंडोथर्मिक है. हीट रिमेन कांस्टेंट. सारी कंडीशंस किसकी ही पढ़ रहे हो आप? आइडियल सॉल्यूशन. नेक्स्ट एंड द लास्ट कंडीशन, ए बी इंटरेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी हियर माय डियर चिल्ड्रन? ए मतलब एक कंपोनेंट, बी दूसरा. कोई भी कंपोनेंट अभी बताऊंगी मैं एग्जांपल्स. ए बी इंटरेक्शन जो है वो सेम होएगा, सिमिलर होएगा एज टू ए एंड बी बी. जैसे मैं तुम्हें समझाऊं ये वाला, जैसे मान के चलो मैं आइडियल एक पेयर बता रही हूं, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन. हेक्सेन में 6 कार्बन है, वॉन्डेवल फोर्स है और कोई सी फोर्स नहीं है. हेप्टेन में भी 7 कार्बन है विदाउट एनी अदर फोर्स अदर देन डिस्पर्शन फोर्सेस. ये दोनों को जब मिक्स करोगे ना तो आइडियल सॉल्यूशन ही बनता है. इसमें ये देखा गया कि हेक्सेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हेप्टेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और हेक्सेन और हेप्टेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सब सेम है. हेक्सेन हेप्टेन हेक्सेन हेप्टेन all are same. So what is the conclusion? AB interaction is similar to that of AA and BB. Is it clear? So AB interaction is similar to that of AA and BB. Let us revise first. Ideal solution is that one which obey Raoult's law over the entire range of concentration. The second thing, the conditions for ideal solution. Now what are the conditions for ideal solution? The condition for ideal solution is that it should obey Raoult's law over the entire range of concentration. When the components are mixed, there is no change in volume, delta V mixing 0. When the components are mixed, there is no change in heat, no evolution, no absorption. The main and the most important one, AB interaction is similar to that of AA and BB. Now the last thing of today's class, examples of ideal solution. Refresher में 20 होंगी. कुछ लोग के मटेरियल मैंने देखे कुछ जगहों के 20 एग्जाम्पल दे रहा है. रवि तुम खुद तो याद कर नहीं पा रहे, बच्चों को दे रहे हो याद करने के लिए? नो, ओनली 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी वाली याद करना है. और जब से लगातार 5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिर्फ एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स आ रही हैं, और इतनी अकल मेरे बच्चे के पास है कि अगर वो 3 में समझा दूंगी तो वो 10 एग्जाम्पल और खुद समझ लेगा. ठीक है? सो द राइट द लास्ट थिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग जो पढ़ाई है मैंने. एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन एक एग्जाम्पल. सेकेंड, बेंजीन एंड टोल्वीन, बेंजीन एंड टोल्वीन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, और एक आखिरी ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन. ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन. आप कहोगे मैडम हम अगर 3 याद करेंगे तो हम 10 ऐसे कैसे समझ लेंगे? फौरन समझ लोगे. तुम देखो हेक्सेन हेप्टेन में सिर्फ डिस्पर्शन है, बेंजीन और टोल्वीन में भी कुछ नहीं है. बेंजीन दोनों में बेंजीन है, CH3 में कोई ऐसी चार्ज नहीं है. ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन में जितना ब्रोमो नेगेटिव है वैसे ही क्लोरो आसपास ही है दोनों. तो ये 3 पेयर आपको याद करना है. और अगली क्लास में ध्यान रखना, मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी तो बच्चे को ये रटा होना चाहिए, जब भी जाके वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझेगा. अदरवाइज नो एनी यूज ऑफ इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिफोर यू गो टू अदर क्लास एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद मैनी मोर एंड रिवाइज द टॉपिक्स. चैप्टर बढ़ता जा रहा है आगे स्टेप बाय स्टेप. समझ आ रही है मेरी बात? सो ऑल द बेस्ट for today. Let us meet the next day. Till that time, be safe, healthy and goodbye.